Good morning, my sweet little buddies. How are you? I hope you are fine. And this is such a beautiful morning. And it is the best time to admire nature. So, बेटा खूब देखिए, खूब एक्सरसाइज करिए, जल्दी उठिए और नेचर को एडमायर करिए, सीखिए नेचर से कितनी खूबसूरत है हमारी प्रकृति. तो चलिए, let us pray to God and thank Him for all His blessings and such a wonderful word around us. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॐ God guide me, protect me. Oh God guide me, protect me. Illumine the lamp of my heart and make me a brilliant star. Thou art the mighty and the powerful. Thou art the mighty and the powerful. I be a witness, oh my God, that Thou hast created me to know Thee and to worship Thee. I testify at this moment to my powerlessness and to Thy might, to my poverty and to Thy wealth. There is none other God but Thee, the help in peril, the self-subsisting. Oh God, guide me, protect me. Oh God, guide me, protect me. So, children, let us continue with lesson number 4, Aladdin and the Magic Lamp. Welcome to the virtual class of English. Wow, what an interesting story, Aladdin and the Magic Lamp. And what we have learned till now, that there was a boy named Aladdin and he was very poor. So one day a magician came to his house and asked his mother to send Aladdin with him, and he promised that he will give a handsome reward to Aladdin. Now he took Aladdin with him and he went to a cave. अब जब वो केव में गए, he asked Aladdin कि आप ऐसा करिए, नीचे जाइए और वहाँ पर से एक ओल्ड लैम्प लेकर आइए. वहाँ एक पुराना दिया रखा है, ओल्ड लैम्प है, उसको लेकर आइए. Aladdin went inside and there he saw many gems, diamonds and gold, silver. So he filled his pocket and then he saw that there is an old lamp which was very dusty. So what he did, he asked the magician to pull him out. Magician said, "No, first give me the lamp, then only I will pull you out." Aladdin thought that he might leave him over there, so he didn't give the lamp and he said, "No, first you will pull me out and then I'll give you the lamp." But magician got annoyed, he got angry and he then went away. So now it was a difficult time for Aladdin, but he didn't lose hope, and by chance he rubbed the lamp. उससे हल्का सा lamp को rub कर दिया. As soon as he rubbed the lamp, a genie came out. Aladdin was surprised to see that genie. So he said, "You are my master because you are holding the lamp, and ask me, command me, what can I do for you?" Aladdin said, "Take me to my mother." So let us see what is there further in the chapter. Interesting, na? Out came the genie. Aladdin then asked him to build a palace for him and his mother. तो जैसे ही मम्मा ने रब किया लैम्प को, तो तुरंत उसमें से जीनी आया. हु हा. क्या हुक्म है मेरे आका? He said like that.
तो अलादीन ने कहा कि मेरे लिए एक पैलेस, एक महल बनाओ, उसके लिए और उसकी मदर के लिए, बिकॉज दे वर वेरी पुअर, तो उनका घर भी शायद छोटा और पुराना होगा, तो नाउ दे वांटेड टू लिव इन अ पैलेस. Again to his and his mother's surprise, a magnificent palace stood where their old hut used to be. तो अगेन मम्मा और अलादीन दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए. क्यों? जैसे ही अलादीन ने ऑर्डर किया, एक मैग्निफिशेंट यानी एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल पैलेस, बहुत सुंदर पैलेस, वहाँ उनकी ओल्ड हट, पुरानी हट की जगह, जहाँ उनकी पुरानी झोपड़ी थी, उसकी जगह एक बहुत बड़ा पैलेस खड़ा हो गया विद इन सेकेंड्स. वाओ! विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम अलादीन बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द टाउन. अब क्योंकि सब कुछ वो जीनी से मांग लेता था, पैसा भी, हीरे भी और सोना चांदी भी, तो बहुत छोटे स्पैन ऑफ टाइम यानी बहुत छोटे समय में अलादीन उस टाउन का सबसे अमीर इंसान बन गया. टाइम पास्ड दिस वे. अलादीन मैरिड सुल्तान्स डॉटर एंड वॉज वेरी हैप्पी. तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम पास होता गया, बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप्स. तो अलादीन ने वहाँ के जो सुल्तान थे यानी वहाँ के जो किंग थे, जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं बेटा, राजा कहते हैं, तो वहाँ पर जो सऊदी अरेबिया में वहाँ के जो किंग होते हैं उनको सुल्तान कहते हैं. तो उसने सुल्तान की डॉटर यानी सुल्तान की बेटी से शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगा. ही हाउएवर वॉज नॉट अवेयर ऑफ द मिसफॉर्चून अहेड. लेकिन उसको पता नहीं था कि अभी उसके साथ मिसफॉर्चून यानी उसका बुरा क्या होने वाला है. द विकेड मैजिशियन having learned of Aladdin's good fortune became jealous and plotted to destroy him. तो अब विकेड मैजिशियन ने, अब अचानक आप बहुत रिच हो जाओ तो सब लोग आपकी बातें करना शुरू कर देते हैं. तो धीरे धीरे जो विकेड यानी बुरा मैजिशियन था, उसको भी अलादीन के ये गुड फॉर्चून यानी देखो कितना अमीर हो गया, देखो उसने सुल्तान की बेटी से शादी कर ली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर वो उसे जेलस यानी जलने लगा एंड प्लॉटेड, एक प्लानिंग करने लगा कि किस तरह से मैं उसको बर्बाद करूं, क्योंकि उसको ये तो समझ आ गया था कि अलादीन कैसे रिच हो रहे. ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ जीनी. ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वंस. बेटा आपने दिवाली पर देखा है ना, घर घर में आप दिवाली पर क्या जलाते हैं, मिट्टी के दिए जलाते हैं. तो वो मिट्टी के दिए जलाने के लिए जो बनाते हैं उनको, वो बहुत सारा मतलब उसको बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, और कई लोग कई बार घर पर आकर भी सेल कर जाते हैं. तो पहले लाइट नहीं होती थी, तो पहले लोग ऐसे ही दिए खरीदते थे, उसमें बहुत सारा ऑयल फिल करते थे और फिर उसको जलाते थे रोशनी के लिए. तो बेटा विकेड मैजिशियन ने क्या प्लानिंग की, उसने अपने आप को ट्रेडर यानी एक ऐसा मर्चेंट बना लिया, डिस्गाइज्ड यानी उसने अपने आप को ऐसा ड्रेसअप कर लिया, ऐसा शो करने लगा कि वो नई लैंप्स देता है पुराने लैंप्स के बदले. वो कहता है कि मुझे पुराना लैंप दे दो और उसके बदले में आपको नया लैंप दूंगा. ही वेंट बाय अलादीन्स पैलेस. तो वो अलादीन के पैलेस के पास गया. बेटा यहाँ वर्ड है जीनी, पैलेस, मदर, टाउन, डॉटर, ये सब क्या है, दीज आर काउंटेबल nouns, so you will underline them. Aladdin's wife, not knowing the value of old lamp, exchanged it for the new one. अब अलादीन बाई चांस घर पे नहीं था, तो अलादीन की जो वाइफ थी यानी सुल्तान की बेटी थी, जब कोई ऑफर देगा, हाँ जी पुराने लैंप दे दो, नए ले लो, तो हम भी चेंज कर लेंगे ना, एक्सचेंज कर लेंगे. तो अलादीन की वाइफ को नहीं पता था कि उस ओल्ड लैंप की वैल्यू क्या है, कि उसमें तो जीनी रहता है और जीनी जो है उसके कारण ही वो रिच है, उनका पैलेस है, सब कुछ है. तो उसने भी फटाफट, हाँ भैया हाँ ये पुराने वाला ले जाइए और नया वाला मुझे सुंदर वाला दे दीजिए. ग्रैबिंग होल्ड ऑफ द ओल्ड लैम्प ही क्विकली रब्ड इट. तो जैसे ही मैजिशियन को पता लगा कि हाँ जी यही वो ओल्ड लैम्प है, उसने फटाफट उसको रब किया. माई मास्टर व्हाट इज योर कमांड, सेड द जीनी. अब जीनी दोबारा हु. बेटा जीनी को मतलब नहीं है कि उसका मास्टर कौन है,
वो तो लैंप में रहता है, जिसके हाथ पे लैंप होगा वो उसी को अपना मास्टर कहेगा। तो उसने कहा, हाँ जी मालिक, आपका क्या हुक्म है, क्या कमांड है? टेक अलादीन्स पैलेस एंड एवरीथिंग इन इट टू अ फार अवे डेजर्ट, ऑर्डर्ड द विकेड मैजिशियन। अब विकेड मैजिशियन तो अलादीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। उसने कहा, अलादीन का पैलेस ले जाओ, सब सामान ले जाओ और फार अवे डेजर्ट यानी दूर रेगिस्तान में वहां पर रख दो। When Aladdin came home, there was no palace and no princess. तो जब अलादीन घर आया उसने देखा, अरे उसका तो पैलेस ही नहीं है, उसकी तो प्रिंसेस ही नहीं है। कहाँ गए थे पैलेस और प्रिंस? वो तो जीनी उनको फार अवे लैंड में ले गया था। He guessed it must be the wicked magician who had come to take revenge on him. तो उसने गेस कर लिया कि ये वही विकेड मैजिशियन है, बुरा मैजिशियन है, जो उसे रिवेंज यानी बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि और तो किसी को जीनी के बारे में पता ही नहीं था। All was not lost. Aladdin had a ring that the magician had given to him. तो अलादीन ने सोचा, अब मैं कैसे ढूंढूं अपने पैलेस को और प्रिंसेस को और लैंप को भी। तो अलादीन ने फिर याद आया, अलादीन के पास एक ऐसी रिंग थी। किसने दी थी ये रिंग? मैजिशियन ने दी थी ये रिंग। और अब उस मैजिशियन ने जब उसको लगा कि ये रिंग भी जरूर मैजिकल होगी, तो अलादीन पुल्ड आउट दैट रिंग, रब्ड इट। अब अलादीन को पता चल गया था कि मैजिक कैसे करना होता है। उसने वो रिंग ली और उसको रब किया। अनदर जीनी अपीयर्ड। अब उसमें से एक और जीनी निकल के आया। अब अलादीन के पास जीनी था हेल्प करने के लिए। अलादीन सेड, टेक मी टू माई पैलेस एंड माई प्रिंसेस। उसने कहा, मुझे मेरे पैलेस और प्रिंसेस के पास ले चलो। अगेन बेटा, यू विल अंडरलाइन दिस काउंटेबल nouns. Soon Aladdin appeared in the palace and found his lamp lying on the table. अब मैजिशियन को नहीं पता था कि अलादीन के पास वो रिंग है, वो भूल गया था और उसको लग रहा था कि अलादीन तो उसको पता ही नहीं चलेगा पहली बात तो मैं कहाँ हूँ, और उसको पता भी चल गया तो इतने डेजर्ट में वो आएगा कैसे। तो अलादीन वहाँ लेकिन पहुँच गया रिंग के जीनी की हेल्प से, और उसने अपना पुराने वाला लैम्प भी ढूंढ लिया। वो कहाँ रखा था? टेबल के ऊपर। He grabbed and rubbed it quickly before the magician could react. तो उसने फटाफट वो लैम्प उठाया और उसको रब किया, इससे पहले कि मैजिशियन को कुछ समझ आता कि ये क्या हुआ, अलादीन कहाँ से आ गया और वो कुछ रिएक्ट करता। अलादीन ने वो लैम्प उठाकर रब कर लिया, और जैसे ही वो रब करेगा क्या होगा? यस, हु हा हा हा, genie will come out. My master Aladdin, it is good to serve you again. What is your wish? said the genie. तो अलादीन ने कहा, हाँ जी मेरे मालिक अलादीन, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको दोबारा सर्व कर रहा हूँ, आपकी सेवा में दोबारा हाजिर हूँ। चलिए बताइए आपकी क्या इच्छा है? जीनी, टेक मी एंड माई प्रिंसेस बैक होम एंड सेंड दिस विकेड मैजिशियन टू अनदर वर्ल्ड सो दैट ही मे नेवर कम बैक, ऑर्डर्ड अलादीन। तो अलादीन ने कहा, जीनी तुम मेरी प्रिंसेस को और मेरे घर को वापस उसी जगह पे ले जाओ और इस बुरे मैजिशियन को दूसरी दुनिया में भेज दो, ताकि ये कभी यहाँ पर आकर किसी को भी परेशान ना करे। इट विल बी एज यू विश माई मास्टर। तो अलादीन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, जैसी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। एट द नेक्स्ट इंस्टेंट Aladdin and his princess were back in Arabia and the wicked magician was banished to another world. और दोबारा ही दूसरे मोमेंट में ही अलादीन और उसकी प्रिंसेस, उसकी राजकुमारी वापस अरेबिया आ गए थे, और जो बुरा मैजिशियन था उसको दूसरी दुनिया में बैनिश्ड यानी भेज दिया गया था। इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अरेबियन टेल्स। बेटा कभी आपको मौका लगे तो बेटा ये बुक्स जो स्टोरी बुक्स हैं, दीज आर वेरी मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप इनको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे तो अच्छी बात तो क्या है, इंटरनेट की बजाय कभी आपको मौका मिले तो बेटा टेक दिस बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड देन रीड इट। ओके बेटा।
Earlier we have done page number 4 and 5 of your cursive stroke book, and today we are going to do page number 6 and 7. See, the first word we are writing is word. Beta, it is a part of the previous page sentence. So, we'll complete the sentence over here, put a full stop. Now, capital letter O, C, over. 70% of the, but I told you earlier also, आप लाइन को टच करके लिखेंगे. The earth's पहले पूरा वर्ड कंप्लीट करेंगे, बाद में डॉट है, लाइन है, एपोस्ट्रोफी है, ये आप बाद में लिखेंगे. अर्थ सरफेस इज. अगेन देखिए बेटा, मैं पहले वर्ड को कंप्लीट कर रही हूं, बाद में डॉट लगाया है आई का. कवर्ड. सी देखिए बेटा, आर की फॉर्मेशन कैसे है. एंड आई एम नॉट लिफ्टिंग माई पेंसिल एट ऑल until and unless that word is complete with water. And हल्का सा राइट साइड की तरफ आप टिल्ट करके लिखेंगे. In this way you will do these 2 pages. Children, your homework is that you will read lesson number 4 of reader and will do page number 6 and 7 of cursive strokes book. Children, today we are going to celebrate World Telecommunication Day. Because of this telecommunication, the whole world has come closer. Beta, we all are very social and man is a social animal. So, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना यानी एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना पहले बहुत साल पहले वॉज डन बाय पिजन्स और ईगल्स. उनके पाँव में छोटी छोटी चिट्ठियाँ बांध दी जाती थी और उनको उड़ा दिया जाता था. बट लेटर ऑन इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डू दिस. द साइंटिस्ट वॉज रिसर्चिंग डे एंड नाइट to make the communication better. So, in July 1875, Graham Bell invented telephone. देखिए बेटा, ये टेलीफोन पे ग्राहम बेल बात कर रहे हैं और कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ये, और बहुत सालों की मेहनत से उन्होंने उसे बनाया. एंड एज द टाइम पास्ड, और साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च की और धीरे धीरे ये लैंडलाइन आया. But this landline was connected with a wire and one has to sit and talk. Later on, these cordless phones were invented, but then too they had some limitations कि बहुत दूर तक इनकी रेंज नहीं थी. And then a revolution came into communication industry and the mobile phones came into existence कि हम कहीं पर भी मोबाइल्स को लेकर जाकर बातचीत कर सकते थे. And better, earlier we had big computers, but धीरे धीरे scientists made the laptops which can be used anywhere. And with the emergence of internet, we could send emails, यानी लेटर्स जो हैं अब emails के थ्रू दूसरों के पास जाने लगे. Now, with the advancement of more of technology, this world now has become a very small place. We can connect with each other, and mobile phones took the place of laptops and phones, everything. Even better, up is pandemic में how you can study. See, there is a mobile phone or a laptop in your hand, and we could study
or we can interact only because of internet and this technology of communication. See children, now the word feels connected. बहुत जल्दी हमें वर्ड की किसी भी कोने की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Airplanes, trains, everything, they run on communication basis. So children, that's why 17th May every year is observed as World Telecommunication Day, because of which we are connected today.